তো বেসিক্যালি আমরা ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্ট স্টার্ট করতে যাচ্ছি। নাও ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্ট ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট অ্যানালিসিসে আসে। মানে ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট অ্যানালিসিসের যে পার্ট আছে তার মধ্যে ক্যাশ ফ্লোটা আসে। ক্যাশ ফ্লো আসে, ফান্ড ফ্লো আসে, রেশিও আসে, কম্পারেটিভ কমন সাইজ আসে। সেখান থেকে আমরা ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্টটা শুরু করব। আচ্ছা, নাও ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্ট বেসিক্যালি যখন আমরা তৈরি করি, দুভাবে ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্ট তৈরি করা যায়। একটা হচ্ছে তোমার ডিরেক্ট মেথড, আর সেকেন্ডেরটা হচ্ছে ইনডিরেক্ট মেথড। নাও cash flow statement comes under accounting standard 3. তো অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড 3 আছে, সেটাকে মেনে ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্ট আমরা প্রিপেয়ার করি। तो एकदम स्टार्टिंग में कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टार्ट हो जाएगा ना। ठीक है, पहले आपको कुछ चीजों का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है when it comes to cash flow statement. Now what is basically this cash flow statement? Now this cash flow statement basically shows that during the year, during a particular financial year, एक ऑर्गेनाइजेशन में कितना कैश इनफ्लो हुआ या कितना कैश आउटफ्लो हुआ। दैट इज द मेन मोटिव of preparing cash flow. It is prepared with the help of balance sheet, means the question is given in the form of balance sheet. From there, basically the cash flow statement is prepared. Now, this cash flow statement is prepared according to the accounting standard 3, which was basically revised. It is prepared under AS revised. It means there were certain changes. Now, it is a statement. It is basically a statement which shows which shows inflows and outflow. It basically shows inflow and outflow of cash and bank balance. Cash and bank balance during the period. Now it has got three types of activities under it. It has got three types of activities under it. मतलब cash flow के अंदर तीन activities है. The first one is operating activity. The second one is investing activity. And the third one is financing activity. So just like as I've told you, it has got three activities: operating, investing, and financing activities. Now, these three activities, with the help of these three activities, we basically determine the amount of inflows and outflows during a accounting period. Now, we need to know कि ऑपरेटिंग में क्या क्या आता है, इन्वेस्टिंग में क्या क्या आता है और फाइनेंसिंग में क्या क्या आता है। Operating consists of all those activities
which are related with your business. मतलब, it consists of all those activities which are principal revenue producing activities. Principal revenue producing activity. Now, what do you mean by principal revenue producing activity? It means like sales, purchase, payment to and from creditor and debtor, etc. Whereas investing activities consists of sale and purchase of tangible, intangible, and non-current investment. Along with that, it also consists of, along with that, it also consists of certain non-operating income like dividend income, rent income, and interest on investments. Whereas financing activity consists of those activities which is basically responsible for, which is basically, we can say, responsible for change in size, which is basically responsible for change in size and composition of owner's capital. It means, थोड़ा सा ब्रीफ में अगर बोले तो इसमें क्या क्या आता है. There are certain activities which are again added because it leads to inflow of cash, and there are certain activities which are again subtracted because it leads to outflow of cash. So financing activity basically deals with shares, debentures, any kind of loan. It can be short term and long term, both. It also deals with interest payment, underwriting commission, premium on redemption, etc. लेटर ऑनवर्ड्स जब फॉर्मेट आएगा तो आपको पता चल जाएगा और भी सारा आइटम्स है, बट एक ब्रीफ में बताने के लिए ये काफी है कि इसमें ये सारा चीज आता है. नाउ let's get into the basic thing, that is, out of these two methods, now there are two methods available. Okay,
Now, out of these two methods, direct and indirect, we will follow the indirect method and prepare our cash flow statements. In this video, I'll basically discuss about the format of preparing cash flow statements. Later onwards, individually operating, investing, and finance will be discussed. So, to start with the format, cash flow statement for the year ended, dot, dot, dot. Now let's see. अब चलिए फटाफट फॉर्मेट देखते हैं, बहुत ज़्यादा इजी है। कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत इंटरेस्टिंग भी है और इजी भी है, बस उसका फॉर्मेट थोड़ा बड़ा है, बट इफ यू स्टिक टू सर्टेन बेसिक थिंग्स, बेसिक पॉइंट्स, तो आपको फॉर्मेट ज़्यादा याद रखने की भी जरूरत नहीं है। यू कैन इजीली क्रैक दोज थिंग्स. So like the first activity is cash flow. और एक बात, before doing cash flow statement, please try to have a brief knowledge about Schedule 3, Part 1 and Part 2, meaning balance sheet and income statement. अगर ये थोड़ा सा आपके पास क्लियर है इन दोनों चीज़ों का पिक्चर, तो you will have a better understanding about cash flow. So we'll start from here. The first activity, the cash flow from operating activity. Now see guys, operating activity मतलब क्या होता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी बेसिकली मतलब होता है कि एक जो आपका प्राइम बिजनेस है, उस बिजनेस से जुड़ा हुआ जो एक्टिविटीज है, मतलब इस एक्टिविटी में we consider all those inflows and outflows of cash which is basically related with your बिजनेस एक्टिविटी, जो आप काम कर रहे हैं उस एक्टिविटी से जुड़ा हुआ कोई भी रेवेन्यू अर्निंग सोर्स, उन चीजों को हम लोग यहाँ पे ऑपरेटिंग में डालते हैं. नाउ व्हाट हैपेंस इज, ऑपरेटिंग एक्टिविटी को समझने के लिए अगर आप थोड़ा सा पीछे जाए और थोड़ा सा क्लास 11 में जो हम लोग फाइनल अकाउंट्स किए थे उसको अगर थोड़ा समझने की कोशिश करें, विल बी मच मोर बेटर फॉर यू. देखिए कैसे, अब क्लास 11 में हम लोग फाइनल अकाउंट्स बनाते थे, isn't it? Now we have a net profit, now we have a gross profit here, we have certain incomes over here. Now all these are non-operating income. Along with that, on the debit side, we have certain expenses. Some expenses are operating expenses. Some expenses are non-operating expenses. Whereas some expenses might be in the form of cash. Again, some expenses might not be in the form of cash. Like for example, depreciation. Now, depreciation is an operating expense, वो एक operating expense है, लेकिन वो नॉन कैश है. तो ऐसे ही यहाँ पे बहुत सारा एक्सपेंसेस होता है जो ऑपरेटिंग है, कुछ एक्सपेंसेस है जो नॉन ऑपरेटिंग है, कुछ कैश और नॉन कैश के फॉर्म में होता है. एंड आफ्टर दैट व्हाट वी गेट इज नेट प्रॉफिट. नाउ बेसिकली द ऑपरेटिंग एक्टिविटी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. इट विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. माय ऑपरेटिंग एक्टिविटी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. ये यहाँ से शुरू होगा, ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी आपका. It means what we have to do while calculating operating activity is that we will take this net profit
and what we will do, we will subtract all the means, sorry, while calculating, जब ये नेट प्रॉफिट हम लोग कैलकुलेट किए थे, तो हम लोगों ने बहुत सारा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हम लोगों ने माइनस किया था, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को हमने प्लस किया था, तभी ना जाके नेट प्रॉफिट आया। अगर अभी आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करते हो कैश फ्लो के अंदर, तो आपको क्या करना होता है बेसिकली, ये जो नेट प्रॉफिट है आपके पास, इस नेट प्रॉफिट के साथ हम लोगों को जितना भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है और नॉन कैश एक्सपेंस है, जो हम लोगों ने नेट प्रॉफिट निकालते वक्त डिडक्ट किया था, उन सारे चीजों को हम लोग को प्लस करना पड़ेगा। इससे समझना थोड़ा आसान हो जाता है, बिकॉज हम लोगों ने कम ज्यादा फाइनल अकाउंट सबको ही किया है, तो वहां से थोड़ा सा पिक्चर क्लियर हो जाता है। जैसे एक आध एग्जांपल दे देते हैं, चलिए। मान लीजिए आपने इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पे किया। नाउ दिस इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज अ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो वो सारा एक एक्सपेंस हो गया। फिर मान लीजिए आपने अंडरराइटिंग कमीशन को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट से राइट ऑफ किया, तो वो अंडरराइटिंग कमीशन भी यहाँ से डिडक्ट हो चुका है, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे। ऑपरेटिंग चीजों को यही छोड़ देते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को टच नहीं करते, ये सिक्योर्ड रहता है, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इन्हीं का मेन रोल होता है। और जितना भी नॉन ऑपरेटिंग है, चाहे वो इनकम हो एक्सपेंस हो, सबको बैक कैलकुलेट करके हम लोग एक पॉइंट तक पहुंचते हैं, और वो बैक कैलकुलेशन करने के लिए नेट प्रॉफिट के साथ हम लोगों को सारे नॉन प्रॉफिट एक्सपेंसेस को ऐड करना होगा, और सारे नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को लेस करना होगा। ऐसे करेंगे तो मेरा कन्वर्जन कंप्लीट हो जाएगा। व्हाई डिड आई से ऑल दिस थिंग्स, बिकॉज जब हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे, तो एक सेक्शन आता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जहाँ पे हम लोगों को एडजस्ट करना पड़ता है जितना भी नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स जो पीएल में आ चुका है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। देखिए, तो सबसे पहला जो चीज आता है यहाँ पे, वो होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नाउ ये भी क्वेश्चन में आपको नहीं दिया हुआ रहेगा डायरेक्टली, यू ऑल्सो नीड टू कैलकुलेट दिस। आपको ये भी क्वेश्चन से जो भी डेटा अवेलेबल होगा वहां से आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसको कैलकुलेट करने का एक स्टेप है, वो स्टेप देखिए क्या है। फर्स्ट विल पुट ऑन अ हेडिंग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है बाबू, अब ध्यान से यहाँ देखिए। सबसे पहला चीज यहाँ पे जो हम लोग लिखते हैं, हम लोग को बैलेंस शीट क्वेश्चन में अवेलेबल रहता है, वहां पे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिया रहता है रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर। तो वहां से स्टेटमेंट ऑफ, और एक चीज, जब भी आप कैश फ्लो का क्वेश्चन परफॉर्म करते हैं, तो आपको जो डेटा होता है वो 2 साल का दिया रहता है, बहुत सारा चेंजेस को ट्रैक करने के लिए। सो व्हाट वी डू ओवर हियर, सरप्लस, दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस। नाउ वी गेट अ फिगर ओवर हियर। अब इसके साथ कुछ चीजों को हम लोग ऐड करते हैं। द फर्स्ट वन इज ट्रांसफर टू रिजर्व। नाउ दिस could be general reserve, workman compensation reserve, because जितना भी रिजर्व्स है वो प्रॉफिट से ही पैसा निकाल के क्रिएट किया जाता है। सो ट्रांसफर टू रिजर्व। नेक्स्ट, डिविडेंड पेएबल। आई रिपीट, डिविडेंड पेएबल। तो बेसिकली ये डिविडेंड पेएबल क्या है, लास्ट ईयर्स proposed
डिविडेंड। लेट मी टेल यू, जो बैलेंस शीट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, आई रिपीट, जो बैलेंस शीट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, वो बैलेंस शीट के नीचे नोट्स में एक आइटम आता है जिसका नाम होता है प्रपोज्ड डिविडेंड। नाउ अकॉर्डिंग टू द न्यू रूल्स, प्रपोज्ड, न्यू नहीं, बहुत पुराना ही है, प्रपोज्ड डिविडेंड बैलेंस शीट में नहीं आता है। व्हाई? बिकॉज इट इज एन कंटिंजेंट लाइबिलिटी। ये एक कंटिंजेंट लाइबिलिटी है, ये बैलेंस शीट पे नहीं आता है, तो इसको नोट्स में दिया जाता है। यहाँ पे दो बैलेंस होता है, एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग। तो ये लिखा हुआ लास्ट ईयर्स, यहाँ लिखा हुआ लास्ट ईयर्स प्रपोज डिविडेंड, उसका मतलब अगर ये बैलेंस अवेलेबल है तो जो भी ओपनिंग बैलेंस होगा उसको आप यहाँ पे ब्रॉट डाउन करो। ओके, नेक्स्ट विल बी, एक डिविडेंड आता है जिसका नाम होता है इंटरिम डिविडेंड। ये डिविडेंड जो होता है वो ड्यूरिंग द ईयर दिया जाता है, तो ये आपको एडजस्टमेंट में मिल जाएगा। इंटीरियम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, अगर है तो एडजस्टमेंट में मिल जाएगा। ओके, द लास्ट वन इज प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, बट बी केयरफुल, ये प्रोविजन फॉर टैक्सेशन को लेके एक एडजस्टमेंट है, वो जब हम लोग प्रैक्टिकल सम करेंगे तब आपको दिखेगा। फिलहाल के लिए ये जान लीजिए, ये जो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन होता है, इसका जो करंट ईयर का बैलेंस होता है वो लिया जाता है। और ये कहाँ पे अवेलेबल होता है? एज आई टोल्ड यू, बैलेंस शीट का नॉलेज होगा तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। ये जो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है, ये शेड्यूल 3 में शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के अंदर आता है। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के अंदर आता है। इसमें दो बैलेंसेस होता है, एक ओपनिंग बैलेंस और एक होता है क्लोजिंग बैलेंस। यहाँ पे अपने को लेना है क्लोजिंग बैलेंस, इसीलिए आप देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है इसलिए आपको दिखेगा यहाँ पे लिखा हुआ है करंट ईयर, और उसके बाद आपको आंसर आ जाएगा। जैसे ही आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको पता चल जाता है, आप अपने कैश फ्लो में वापस ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के साथ प्रोसीड कर सकते हो। देखिए, ये अपने को वर्किंग नोट से आ गया, वर्किंग नोट 1, पुट डाउन द बैलेंस हियर। अब यहाँ पे एक दूसरा सेगमेंट चालू होता है। याद रखिए बाबू, पूरा कैश फ्लो में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। ओके, एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। तो अब ये जो नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स होता है, वापस से वही सेम चीज बाबू जो अभी आपको बताए थे, ये आपको बनाना है इस प्रॉफिट एंड लॉस को दिमाग में रख करके, ध्यान में रख कर। सारा आइटम्स तो यहाँ पे हम लिख नहीं पाए, लेकिन हम डिवाइड कर दिए है, ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग, यहाँ पे नॉन ऑपरेटिंग इनकम सब कुछ बोल दिया गया। अब जब यहाँ पे हम सारे आइटम्स को लिस्ट करेंगे तब आपको एक एक करके याद आता जाएगा कि आपको ये सारा चीज यहाँ पे कैश फ्लो में आता है। सबसे पहला जो चीज, पहले हम लोग ऐड करते हैं, क्योंकि पहले हम लोग जैसे आपको बताए थे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हमने एक टाइम पे माइनस किया था। अब सिचुएशन को सही करने के लिए हम लोगों को ऐड करना पड़ेगा, तो इसीलिए पहले हम लोग ऐड वाले सेक्शन पे आते हैं। चलिए, तो ऐड वाले सेक्शन में आते हैं। सबसे पहला इस पे जो चीज आता है वो होता है डेप्रिसिएशन। और ये डेप्रिसिएशन होता है
टैंजिबल एसेट्स पे। नेक्स्ट आता है amortization। ऑन ये किस पे आता है बाबू? ये आता है इंटेंजिबल एसेट्स पे। ये सब कुछ बैलेंस शीट में दिया हुआ होगा, अगर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो नहीं है। बिकॉज आइटम्स तो ऐसे बहुत सारे आएंगे, लेकिन सब कुछ हो ऐसा भी जरूरी नहीं है। सब कुछ नहीं भी हो सकता है, उसमें कुछ सोचने की बात नहीं ज्यादा। जो होगा वो आप लेना, जो नहीं होगा वो मत लेना। चलिए नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन। नाउ इंटरेस्ट जो है वो हम लोग पे करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करते हैं, वो नॉन ऑपरेटिंग होता है, तो वहां पे लेस किए थे, हम सिचुएशन को रिवर्स करने के लिए ऐड करेंगे। अब ये जो इंटरेस्ट है वो शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट लोन्स का भी इंटरेस्ट यहाँ पे ऐड होगा, और लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट का जो लोन है, लोन का जो इंटरेस्ट है वो भी यहाँ पे ऐड होगा। इसलिए हम लिख दिए इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोन। अब आप बोलोगे कि सर थोड़ा सा बता दीजिए शॉर्ट और लॉन्ग में क्या आ गया। जैसे शॉर्ट टर्म में आपका आ गया बैंक ओडी, या आपका आ गया शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। अच्छा, अब आपका लॉन्ग टर्म में आ गया, जैसे कि मान लीजिए डिबेंचर, या आप ये कंसिडर कर लो कि इसके अंदर आ गया बैंक लोन एक्सेट्रा। ये एक बस हिंट था आपको बताने के लिए कि क्या मतलब है इस लाइन का। इसके बाद हम लोग आते हैं राइटिंग ऑफ डिस्काउंट्स ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। हम लोग जब डिस्काउंट डिबेंचर्स को डिस्काउंट में जब इशू करते हैं बाबू, तो उसको हम लोग उस साल राइट ऑफ करते हैं अपने प्रॉफिट से। तो बेसिकली पीएल से जितना राइट ऑफ होगा वो यहाँ पे आता है। आई रिपीट, बेसिकली ये जो राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर है, ये एक तरह का कैपिटल लॉस है जो सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ होता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस अवेलेबल नहीं होने के कारण हम लोग उसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से राइट ऑफ कर देते हैं, और और वो चीज आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखने लगता है। तो याद रखिए ये तभी होता है जब सिक्योरिटी प्रीमियम क्वेश्चन में नहीं होता है। इन दैट केस इन दैट केस प्रीमियम को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस से माइनस कर देते हैं, और बाद में जब पता चलता है कि हम लोग कैश फ्लो बनाने वाले हैं और ये एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, तो इसको हम लोग वापस से क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। इसको हम लोग वापस से ऐड कर देते हैं, याद रखिएगा। सेम चीज, यही सेम चीज हम लोग इसके बाद वाले दो आइटम्स के साथ भी करते हैं। राइटिंग ऑफ अंडर राइटिंग कमीशन और शेयर इशू एक्सपेंसेस, इनके साथ भी ऐसा ही ट्रीटमेंट किया जाता है। चलिए, इसके बाद आता है राइटिंग ऑफ प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। सेम चीज, ये हम लोग रिडेम्पशन में जो प्रीमियम देते हैं वो बेसिकली अपना लॉस होता है, उसको अपने लोग पीएल से राइट ऑफ करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ करते हैं। लेकिन
लेकिन अगर वो नहीं है तो फिर आप पीएल से उसको राइट ऑफ कर सकते हैं। उस केस में ये आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर ऐड होता हुआ दिखेगा और एल्स नहीं। नेक्स्ट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अगर आपने कोई फिक्स्ड एसेट सेल किया है तो वो भी यहाँ पे ऐड हो जाता है, बिकॉज वो अपना लॉस तो है लेकिन वो नॉन ऑपरेटिंग लॉस है। अपना धंधा जो है वो एसेट्स बेचने का नहीं है। ये आपको याद रखना है। आपके धंधे से कनेक्टेड चीजों को आप ऑपरेटिंग में रखोगे, उसके अलावा जो नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग होगा उन सब चीजों को आपको अवॉइड करना है, ये चीज याद रखिए। नेक्स्ट है इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। इतना आइटम काफी है, वो मिल जाएगा एग्जाम में। इतना आइटम्स सब कुछ नहीं भी हो सकता है, लेकिन ऐड के अंदर पे इतना ही आइटम्स आता है। अब इसके बाद बहुत सारा ऐसा एक्टिविटीज है जिसको हम लोग नॉन ऑपरेटिंग इनकम के नाम से जानते हैं। तो अगर मेरे नेट प्रॉफिट में वैसा कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम का इन्वॉल्वमेंट है तो उन सारी चीजों को हम लोग लेस कर देंगे। अब इसमें क्या क्या आता है? बेसिकली पांच चीजें, एकदम इजी है याद रखना। पांच चीजें। पहला, इंटरेस्ट इनकम। दूसरा, डिविडेंड इनकम। फिर आपका आ गया रेंटल इनकम। जैसे हम पढ़ाते हैं तो मेरा जो पढ़ाई से जो इनकम आया वो ऑपरेटिंग हुआ, लेकिन हमने कहीं इन्वेस्ट करके रखा है, कोई कंपनी का शेयर्स खरीद के रखा है, कोई अपना एक वेकेंट एरिया था उसको रेंट पे दिया है, तो वो सारा जो भी इनकम आता है वो मेरा ऑपरेटिंग नहीं है, वो मेरा नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। सो फॉलोड बाय गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। द लास्ट आइटम, decrease in provision for doubtful debts. Now all these items, जितने भी यहाँ पे सारा आइटम है, इन चीजों को ऐड करते हैं हम लोग, फिर इन सभी आइटम से लेस करते हैं, और जो अल्टीमेट रिजल्ट होता है उसको यहाँ लिखा जाता है, और फिर इन दोनों आइटम्स को हम लोग ऐड करते हैं। इसको थोड़ा स्ट्रेच कर लेते हैं। चलिए, अब ये ऐड करने के बाद जो चीज अल्टीमेटली निकल के आता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अपना मकसद यही था कि सारे नॉन ऑपरेटिंग चीजों को, नॉन कैश चीजों को अलग करना, इसीलिए इसका नाम है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग एक्टिविटी ही होता है। अगर आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पता लगा लिया तो कैश फ्लो बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। क्यों इजी हो जाता है आपको पता चलेगा जब हम लोग इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग करेंगे, बिकॉज कैश फ्लो एक्टिविटीज में बहुत सारा, मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में सॉरी, बहुत सारा ऐसा चीज है जो फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग से रिलेटेड होता है। वो हम बताएंगे जब इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग बताया जाए। अब आते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। बहुत ज्यादा इजी है। आपको क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट अवेलेबल रहेगा वहां पे दो सेक्शन आपको दिखेगा। एक होता है, एक होगा आपका करंट एसेट का,
और एक होगा आपका करंट लायबिलिटीज का। अब करंट एसेट्स में बहुत सारे आइटम्स है, करंट इन्वेस्टमेंट है, इन्वेंट्रीज है, कैश एंड बैंक बैलेंस है, ट्रेड रिसीवेबल है, अदर करंट एसेट्स है, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस है। तो इन सब चीजों का जो चेंज है वो चेंज यहाँ पे हाईलाइट कर, लाइक फॉर एग्जांपल शॉर्ट में अगर बोले तो मान लीजिए डेटर प्रोवाइड किया हुआ है आपको, एक ओपनिंग बैलेंस है, एक क्लोजिंग बैलेंस। तो करंट एसेट्स में क्या रूल होता है, एकदम सिंपल होता है, याद रखिएगा। अगर क्लोजिंग ओपनिंग से बढ़ा है उसका मतलब डेटर बढ़ रहा है। तो अगर डेटर बढ़ रहा है इन द सेंस इफ करंट एसेट्स वैल्यूज आर राइजिंग, तो उसका जो गैप है जितने से वो राइज हो रहा है उसको हम लोग माइनस करेंगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर ये 20,000 है और ये 30,000, तो हम लोग 10,000 माइनस करेंगे। सिमिलरली वाइस वर्सा, अगर करंट एसेट्स का वैल्यू फॉल होता है तो जितने से फॉल हुआ है उतना हम लोग प्लस कर देंगे। ठीक है, रिवर्स फॉर करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी का वैल्यू अगर राइज होता है, सपोजिटली आई विल कंसिडर ट्रेड पेएबल, अगर राइज होता है तो जितने से राइज होता है वो हम लोग ऐड करेंगे। सिमिलरली अगर मेरा वैल्यू जो है वो फॉल होता है तो जितने से फॉल होगा वो हम लोग माइनस करेंगे। इसको याद रखने के एक इजी ट्रिक ऐसे होता है बाबू, आप ऐसे याद रख सकते हैं कि करंट लायबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब अगर राइज होगा तो ऐड करेंगे, फॉल होगा तो लेस करेंगे। और करंट एसेट्स जो है इन्वर्सली रिलेटेड है, अगर राइज होगा तो माइनस करेंगे और अगर फॉल होगा तो प्लस करेंगे। ये इजीएस्ट वे है, इससे आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, और एक चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी है याद रखना इस पार्ट में, वो ये है कि करंट एसेट्स में आता तो बहुत कुछ है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक चीजों को करंट एसेट में हम लोग नहीं ले सकते। वो हम फॉर्मेट में पुट डाउन करते हैं, आपको दिखेगा वहां पे। तो सबसे पहले यहाँ पे ऐसे हम लोग लिख देते हैं, ऐड क्या क्या होगा। ऐड होगा इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन करंट एसेट्स। सिमिलरली लेस क्या होगा, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी एंड increase in current assets. Now this comes with an exception guys. एक थोड़ा बहुत कुछ एक्सेप्शन है वो थोड़ा सुन लीजिए। जैसे करंट एसेट में कुछ चीजों को आप इन्वॉल्व नहीं कर सकते व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग चेंजेस फॉर वर्किंग कैपिटल, जैसे कि मार्केटेबल सिक्योरिटीज। क्यों इन्वॉल्व नहीं कर सकते मार्केटेबल सिक्योरिटीज को, बिकॉज इट इज इक्विवेलेंट टू कैश एंड कैश, इट इज इक्विवेलेंट टू कैश एंड बैंक, दैट इज वाई इसको इन्वॉल्व नहीं कर सकते। दूसरा किसको इन्वॉल्व नहीं कर सकते, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। क्यों इसको इन्वॉल्व नहीं कर सकते, दिस इज एक्चुअली एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो वो यहाँ पे नहीं आएगी। नेक्स्ट, और एक चीज जो सबसे वाइटल है, कैश एंड बैंक बैलेंस। पहले हम लोग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिखते थे, अब चेंज हो गया, अब आता है कैश एंड बैंक बैलेंस, दैट्स इट। तो इसको इन्वॉल्व नहीं कर सकते। सिमिलरली करंट लाइबिलिटीज में भी कुछ आइटम्स है जिसको आप चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में नहीं ला सकते, उसका भी रीजन है, सब चीजों का रीजन बता देते हैं तो आपको याद रहेगा, ऐसे रट्टा मत मार लेना। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, ये शॉर्ट टर्म बोरिंग जो है
वो बेसिकली लेंडिंग एक्टिविटीज है, सॉरी बोरोइंग एक्टिविटी है। तो इन दैट केस ये फिनेंसिंग से रिलेटेड है। तो इसीलिए शॉर्ट टर्म बोरोइंग में कोई भी इंक्रीज डिक्रीज होता है तो वो फाइनेंसिंग में जाता है। और एक चीज जो नहीं आता वो है शॉर्ट टर्म प्रोविजन। सो ये कुछ आइटम्स है जो आपका चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में कोई इफेक्ट नहीं लाएगा, याद रखिएगा। एंड आई रिपीट वन मोर टाइम, increase in current liability add, decrease in current asset add, decrease in current liability less, increase in current asset less, वाइसी वर्सा है। ऐसे आप याद रख सकते हैं इन चीजों को। तो अब यहाँ से जो आउटकम आता है उसको हम लोग यहाँ डाल देते हैं। अब ये प्लस में भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। हम नॉर्मली पकड़ते हैं कि प्लस में ही आया होगा। अब जो फाइनली इन दो चीजों का फिर हम लोग सम करते हैं तो अपने को आता है कैश generated from operations. In the end, we have almost come to the end of operating activity. हम लोग और एक चीज माइनस करते हैं जिसको बोलते हैं लेस टैक्स पेड। ठीक है। फाइनली व्हाट वी गेट इज, अगर आंसर पॉजिटिव में है, पॉजिटिव में भी आ सकता है आंसर और नेगेटिव में भी आ सकता है। अगर पॉजिटिव में है तो हम लोग लिखते हैं नेट कैश फ्लो, और अगर नेगेटिव में है तो लिखते हैं नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। दैट्स इट। तो आप सोच रहे होंगे सर ये टैक्स पेड कहाँ से आया, आपने बताया नहीं। ये क्वेश्चन में दिया रहे, जैसे कि लेट मी टेल यू, थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, बाकी सम करते वक्त आपको दिखेगा। ये जो शॉर्ट टर्म प्रोविजन होता है, इसके नीचे ही प्रोविजन फॉर टैक्स आता है। और प्रोविजन फॉर टैक्स में अभी आपको बताया गया था दो बैलेंस होता है, एक ओपनिंग और क्लोजिंग, अगर बैलेंस शीट में है। तो ये जो क्लोजिंग वाला है वो यहाँ नेट प्रॉफिट के कैलकुलेशन में चला जाता है। ये देखिए बोले ना प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर द करेंट ईयर। और ये जो ओपनिंग वाला है ये हो जाता है टैक्स पेड। अब प्लीज माइंड इट, अगर प्रोविजन में और कोई इंफॉर्मेशन है तो वी हैव टू प्रिपेयर लेजर। ठीक है। ये तब के लिए बताया गया है जस्ट आपको समझ में आए कि क्या करना है। इफ ओनली ओपनिंग एंड क्लोजिंग दिया है तब आप ऐसा कर सकते हैं, इसके अलावा और कोई इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू प्रोविजन तो आपको लेजर बनाना है, वो सम करेंगे तो पता चलेगा। फिलहाल के लिए जस्ट अ ब्रीफ, क्लोजिंग जो है वो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में, और ओपनिंग जो है वो टैक्स पेड हो जाएगा। कहाँ पे टैक्स पेड हो जाएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में लेस टैक्स पेड, वही है, ग्रीन से हाईलाइट किया। ओके, फिनिश। नाउ वी कम टू इन्वेस्टिंग, द मोस्ट इजीएस्ट ऑफ ऑल। कैश फ्लो एक्टिविटी में सबसे इजी अगर कुछ है तो वो है आपका कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो ये हो गया रोमन 2, ये था आपका रोमन 1। तीन एक्टिविटी है, तो ये सेकंड एक्टिविटी आपने स्टार्ट की है। ठीक है, क्या नाम है इसका? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। चलिए, तो कैसे होगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज? सबसे पहले उन चीजों को लिख लोग जॉट डाउन करेंगे जो सारे चीज ऐड होते हैं कैश फ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। सबसे पहले
सेल ऑफ tangible assets. Next, sale of intangible asset. Next, sale of non-current investments. ये सब कुछ एडजस्टमेंट्स में रहेगा, अगर नहीं रहेगा तो फिर हम लोग को उसका क्लोजिंग और ओपनिंग वैल्यू देख करके डिटरमाइन करना पड़ता है। फॉलोड बाई, नाउ ये जो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है इसके साथ और एक चीज ऐड कर देते हैं, वो होता है करंट इन्वेस्टमेंट भी आता है इसके अंदर। करंट इन्वेस्टमेंट बोले तो जो अभी आपको हम बताए थे मार्केटेबल सिक्योरिटी, ये जो मार्केटेबल सिक्योरिटी यहाँ लिखा हुआ है ये एक्चुअली करंट इन्वेस्टमेंट के नीचे आता है। अगर आप शेड्यूल 3 का हेड सब हेड पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। चलिए, इसके बाद अपने आते हैं, हम पहले आपको बताए थे कि इन्वेस्टिंग का कुछ आइटम्स जो है वो ऑपरेटिंग से बहुत हद तक रिलेटेड है। और कौन सा आइटम है अब वो देखिए आप, ये देखिए, ये तीनों चीज ये तीनों चीज ऑपरेटिंग से बहुत हद तक रिलेटेड है। ठीक है, तो इन तीनों चीजों को वहां से उठा करके यहाँ लाना है आपको। तो पहला क्या हो गया, डिविडेंड इनकम। दूसरा क्या था, इंटरेस्ट, एक साथ लिख देते हैं, इंटरेस्ट एंड रेंटल इनकम। तो ये सारा चीज प्लस होता है। और सर लेस में क्या आता है, वापस से जिन चीजों को आपने प्लस किया उन्हीं चीजों को आप लेस में घुमाइए। जैसे, क्योंकि सेल करोगे तो पैसा इनफ्लो होता है तो वो ऑब्वियस सा बात है ऐड होगा। परचेस करोगे तो पैसा आउटफ्लो होता है तो वो लेस होगा। परचेस ऑफ tangible assets followed by purchase of intangible assets, last purchase of non-current or current investment. That brings us to the end of investing activity. अब ये प्लस में भी आ सकता है आंसर और फिर ये माइनस में भी आ सकता है, दोनों का चांस खुला रहता है। तो फिर हम लोग भी यहाँ भी वैसे लिखेंगे, नेट कैश, if it's plus then flow, if it's minus then used in investing activities. Okay, followed by the last activity, that is activity number 3. Now please remember one thing, ये जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आपने सेल परचेज जो भी कुछ देखा है, these are all related with certain ledger accounts of tangible asset, intangible asset, along with depreciation का भी adjustment होता है। We will have a separate video on that, just on that part, क्योंकि बहुतों को ये डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इन चीज़ों में प्रॉब्लम होता है। दिस इज जस्ट द फॉर्मेट ताकि आप इजीली चीज़ों को समझ लो और सम्स करने में आपको कोई दिक्कत ना हो। नेक्स्ट, द लास्ट एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। दीज आर रिलेटेड विद द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। तो इसमें भी कुछ चीज़ों को पहले ऐड किया जाता है जहाँ पे इनफ्लो होता है। तो बेसिकली इट्स वेरी इजी टू रिमेम्बर, देयर आर 4 to 5 आइटम्स जो ऐड होगा।
देखिए कैसे। पहला, इशू ऑफ शेयर्स। अगर आपने क्लोजिंग में देखा 1 लाख रुपए है, ओपनिंग में 50,000 है, मतलब 50,000 का शेयर इशू हुआ है। तो इशू ऑफ शेयर्स, इट विल कैप्चर बोथ इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर। ओके, तो ये प्लस होगा क्योंकि पैसा इनफ्लो हो रहा है। ओके, नेक्स्ट वी विल फॉलोड बाय इशू ऑफ डिबेंचर्स। इशू ऑफ डिबेंचर्स, अगेन पैसा इनफ्लो हो रहा है। ओके, नेक्स्ट, प्रोसीड्स। प्रोसीड्स फ्रॉम both long term and short term borrowings। मतलब अगर आप देखते हो कि आपका लोन चाहे वो शॉर्ट हो या लॉन्ग हो, जो भी बोरोइंग्स है आपका, उसका वैल्यू अगर बढ़ रहा है, इसका मतलब आपने लोन लिया है, एंड दैट इज इनफ्लो एंड विल बी एडेड। नेक्स्ट, रिसीप्ट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम। ये भी क्वेश्चन में आपको अवेलेबल रहेगा कि आपको प्रीमियम रिसीव हुआ है या नहीं। बिकॉज अगर आप शेयर वगैरह इशू करते हो, डिवेंचर इशू करते हो, तो प्रीमियम का कॉन्सेप्ट तो आता ही है। तो वो बस रिसीट वाला पोर्शन यहाँ पे है। सो दीज आर द 4 आइटम्स विच आर बेसिकली एडेड। अब इसके बाद इन्हीं से रिलेटेड चीजों को हम लोग माइनस करते हैं। जैसे सबसे पहले जैसे आप ये बोल सकते हैं, रिडेम्पशन। इन्हीं से रिलेटेड जितने चीजों को ऐड किया है उन्हीं से रिलेटेड आइटम है। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर। गलती से इक्विटी शेयर मत लिख देना, इक्विटी शेयर रिडीम नहीं होता है बाबू। याद रखिए, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में जब जाओगे हायर लेवल में पढ़ोगे कि इक्विटी शेयर बाईबैक होता है, रिडीम नहीं होता। हम लोग हर हर चैप्टर पढ़ते हैं, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर आपके सिलेबस में पढ़ेंगे, प्रेफरेंस शेयर भी हम लोग पढ़ चुके हैं कॉर्पोरेट में। लेकिन बाईबैक ऑफ इक्विटी शेयर, वो इक्विटी शेयर का बाईबैक होता है। तो यहाँ लिखिएगा आप, बाईबैक ऑफ इक्विटी शेयर, उसको रिडेम्पशन में मत डाल देना, गलत हो जाएगा। तो इन सब ये सब चीज करते हैं तो पैसा आउटफ्लो होता है। तो ये सब जैसे कि प्लस में आ गया, तो यहाँ पे जितना भी आइटम लिखेंगे सब माइनस होगा। अच्छा, उसके बाद लोन लिए थे तो प्रोसीड्स हुआ, अब लोन चुकाएंगे तो क्या होगा, रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। ओके, किसी भी तरीके का लोन का अगर हम लोग रीपेमेंट करते हैं तो वो भी यहाँ पे आता है। ओके, नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। एज आई टोल्ड यू, ये देखिए, ये ऊपर में था ना ये वाला, ऑपरेटिंग में, ये देखिए यहाँ पे हम लोग जो राइट ऑफ करते हैं, ठीक है। बहुत हद तक ऑपरेटिंग का कुछ कुछ आइटम्स जो है वो इन्वेस्ट फाइनेंसिंग से रिलेटेड। तो पेमेंट ऑन प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, नाउ दिस कुड बी डिबेंचर और इट कुड बी प्रेफरेंस। ओके, नेक्स्ट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। Discount on issue of debentures. Interest on any type of borrowing, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म। देखिए ध्यान से, अगर इन चीजों को आप देखिएगा तो आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इन सबको मेंशन किया था। ये देखिए, ये फाइनेंसिंग से रिलेटेड हो गया, ये फाइनेंसिंग से रिलेटेड हो गया, ये फाइनेंसिंग से रिलेटेड हो गया, ये भी रिलेटेड हो गया,
तो इतना सारा एक्टिविटीज जो भी आपके सामने है, ये सारे एक्टिविटीज को जब आप लेस करोगे तो फाइनली जो निकल करके आएगा। हाँ, और एक चीज, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, चाहे वो फाइनल डिविडेंड हो या इंटीरियर डिविडेंड। ये कहाँ से मिल जाएगा? ये भी ऑपरेटिंग में, जब हम लोग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट किए थे, वहां पे ये दो चीज था, ये देखिए। तो वहां पे हम लोग ऐड किए थे क्योंकि वो नॉन ऑपरेटिंग था, और यहाँ पे एक्चुअल में इसका जगह फाइनेंसिंग में है, तो यहाँ पे हम लोग प्लस करते हैं, माइनस करते हैं। So finally we will again get an answer अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटी, जो वापस से पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों सूत्रों में आपको मिल सकता है। सो वी विल राइट नेट कैश फ्लो if in positive, used if the answer is in minus। यूज मतलब उधर नेगेटिव में आए। इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब आप लोगों को टोटल देखिए तीन एक्टिविटीज दिखेगा। सबसे पहला ऑपरेटिंग, हम हाईलाइट करते हैं ग्रीन से, ऑपरेटिंग। उसके बाद आपको दिखेगा इन्वेस्टिंग, और उसके बाद आपको दिखेगा फाइनेंसिंग। ओके, नेक्स्ट, लास्ट है अभी। Last in the sense all the activities are covered up. Now what we need to do? We need to sum up all the activities. So what we'll write? Net increase slash decrease, क्योंकि अगर आंसर पॉजिटिव में आता है तो इंक्रीज, अगर नेगेटिव में आता है तो डिक्रीज। सो इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड बैंक बैलेंस, 1 + 2 + 3, all the activities will be added up. Now we will get an answer of there also। बी आंसर वापस से पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, आउटर कॉलम। नाउ वी विल ऐड कैश एंड बैंक बैलेंस इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। अच्छा, ये जो है कैश एंड बैंक बैलेंस इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, इसमें क्या क्या आता है? इसमें आपका आएगा कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, और इस पे आएगा आपका मार्केटेबल सिक्योरिटी। तो पता चला क्यों मार्केटेबल सिक्योरिटीज को हम लोग इन्वेस्टिंग, सॉरी, चेंजेस फ्रॉम वर्किंग कैपिटल से दूर रखते हैं, क्योंकि उसका एक्चुअल पोजीशन है कैश एंड बैंक बैलेंस। नाउ फाइनली वी विल ऐड इट अप एंड विल गेट आंसर। नाउ अगर आपने कैश फ्लो सही से एकदम किया होगा, तो ये जो लास्ट का जो आंसर आएगा वो आपका बैलेंस शीट में जो क्लोजिंग बैंक कैश बैंक बैलेंस दिया हुआ है उसके साथ टैली हो जाएगा। Now this will also include the following balances. This is all about cash flow statement, ये पूरा फॉर्मेट है, इसको आप अच्छे से देखिए। The next time we will bring up with some, sure, we will come up with some short videos with different adjustments, और फिर एक full fledged sum भी कराना है। Hopefully it will help you. Thank you.